Assalamu alaikum students. This is Naghman Hammed. Again, we have a video on paper 2 now. This time, paper 3 videos will go on, and there are a few topics from paper 2 that need to be revised. Right? Some conceptual questions they come from the past papers that have already been asked, uh, along with some long pseudocode questions. Right, this time we know program code is not in your syllabus, so pseudocode is to be very well prepared. Let's practice a few of those questions. Right, I'm going to share my screen. Okay, these are some specimen questions given to me that to be explained. Question number 1: program variables have values as follows. Now this is purely a conceptual question, right? Variable names have been given along with the values, and we have to describe the data types of those particular variables. For example, today it stores Tuesday. It's in inverted commas. So straight away this is a string data type, right? You know the list of data types that we choose from: string, integer, real, boolean, date, time, character, which is called char, right? And a few others. So this is string, and week number stores 37. It's a whole number. So this will be preferably integer. This can also be termed as real, but real contains both whole number or fractional number. This is a whole number, so you can safely mention it as an integer. Division, ये किस type का? Single character, which is an alphabet, and it's in inverted commas, but these are single inverted commas. So this is going to be a character type data type, char or character, right? इसमें single data type होते हैं और inverted commas single होते हैं. इससे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें भी सिंगल हो सकता है स्ट्रिंग में. अगर आपका सिर्फ टी है और लेकिन आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग ही रहेगा, राइट? चार या कैरेक्टर डेटा टाइप हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में होगी और उसके अंदर सिंगल कैरेक्टर होगा, एंड दैट कैरेक्टर कुड बी एन अल्फाबेट, नंबर, और एनी स्पेशल कैरेक्टर, और इवन स्पेस. Next date has a fractional number with decimal. So this is going to be a real or decimal. इसमें दोनों ठीक होंगे. आप जब मार्किंग स्कीम देखते हैं ना, उसमें यूजुअली दो लिखी होती हैं ऑप्शंस. अगर दोनों में से कोई भी आप लिखे वो ट्रू होगा, लेकिन आपने दोनों ही लिखनी. आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपने सिर्फ एक लिखना है, या डेसिमल या रियल. रियल इज क्वाइट सेफ क्योंकि उसमें दोनों चीजें आती हैं. लास्ट बैच, इट्स ट्रू. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बूलियन डेटा टाइप. ट्रू, ठीक हो गया. ये 5 मार्क्स आपके. दिस इज क्वाइट स्कोरिंग क्वेश्चन. Now, typically, another question that comes on expressions, and we have to evaluate them. And sometimes evaluated expression is given, and we have to write the input expression, right? And but this has been quite rare. Let's see. Met today 3-2. What's in today? Check. This is today. Today में यहाँ पे लिखा हुआ था. Today is Tuesday. Now, met क्या करता है? इसके आगे ये दो पैरामीटर्स 3 and 2. थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे. हमें काउंट कर रहे हैं. थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे और 2 कैरेक्टर्स काउंट करेंगे. इट विल रिटर्न, देखिए, थर्ड कैरेक्टर 1 2 3. ई से स्टार्ट करेंगे और 2 कैरेक्टर्स काउंट करेंगे, ई एंड एस. ठीक है, ये इंक्लूडेड होता है ई एस. ठीक है, ई एस इसका आ गया. ये जो एंड साइन है इसको एम्परसेंड कहते हैं. दिस इज फॉर जॉइनिंग द स्ट्रिंग. ये दो स्ट्रिंग्स को या स्ट्रिंग और वेरिएबल को जॉइन करता है. इसको कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, कंकैटिनेट करता है, जॉइन करता है. रिवीजन, और फिर एक और जॉइन हो रहा है एपीई. एप रिवीजन में क्या है? लेट्स सी. रिवीजन में सिंगल कैरेक्टर सी है, तो ई एस सी तीन हो गए. ठीक है, अब सी इसी तरह कैपिटल आएगा, ये स्मॉल आएंगे, ये कैपिटल आएगा. आपने वैसे ही लिखना. एप, ई एस सी ए पी ई. व्हाट डज दैट मीन? एस्केप. ठीक है, यहाँ पे आप एस्केप लिखेंगे विद सी कैपिटल.
है ना, क्योंकि कैपिटल को स्मॉल में कहीं लिखे, आप उसको कैपिटल लिखे। इंटीजर INT जो फंक्शन होता है, इसमें मैक्स वेट प्लस 4.2। INT ये करता है कि आपके फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करता है, आपका सिर्फ डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देता है और राउंड ऑफ नहीं करता। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करता। जैसे 4.2 है, इस पे INT अप्लाई होगा तो 0.2 रिमूव हो जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमने डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, हमारे पास मैक्स वेट की वैल्यू होनी चाहिए। मैक्स वेट इज 60.5। ओके, 60.5 प्लस 4.2, 64.7। ठीक है, 64.7 पे INT का फंक्शन अप्लाई करें, 0.7 को ट्रंकेट कर देगा और 64 रिटर्न कर देगा। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेगा। ओके, लेंथ, लेंथ मींस ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है कि मैक्स वेट का जितना भी साइज है उसके ऊपर, यानी ये स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ आपको बताएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो रिटर्न करेगा। मैक्स वेट क्या है? मैक्स वेट इज 60 पॉइंट, ये तो नंबर है। बाय लेंथ इज अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप, एक्चुअली इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ नंबर। अब यहाँ पे देखिए, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल, इफ एन एक्सप्रेशन इज इनवैलिड देन राइट एरर। तो ये आप ये नहीं करेंगे कि इसके ऊपर इसकी लेंथ करेंगे, ये तो लेंथ अप्लाई हो ही नहीं सकती, यहाँ पे एरर आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज मैक्स वेट वाज सपोज्ड टू बी स्ट्रिंग डेटा टाइप, इट्स नॉट। आप ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 इसका 4 रिटर्न करें, क्योंकि नंबर है, नंबर के ऊपर लेंथ अप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, एरर। मॉड, वीक नंबर, कॉमा एंड 12। मॉड मीन्स मॉडुलस, इसका मतलब है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर रिटर्न होगा, जो रिमाइंडर, नॉट क्वोशंट। क्वोशंट के लिए डिव आता है, तो रिमाइंडर के लिए मॉड आता है। वीक नंबर को 12 से डिवाइड करें, लेट्स सी, वीक नंबर इज 37, इसको 12 से डिवाइड करें, 12 3s are 36 एंड 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, सो 1 इज योर मॉड। ठीक है, लास्ट वन, रिवीजन लेस देन d, right? It means less than d and not last patch. लास्ट पैच क्या है जी? ट्रू। ट्रू के ऊपर जब आप नॉट अप्लाई करते हैं इट बिकम्स फॉल्स। ठीक है, एंड फॉल्स। नाउ दिस इज अ डॉजिंग क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक, एंड दिस इज ट्रू एक्चुअली, एंड में अगर एक भी जीरो है, ये जीरो हो जाएगा ना, फॉल्स है, एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स। दे वॉन्ट इवन लुक एट दिस एक्सप्रेशन, राइट? वो तो ठीक है, ये फैक्ट है कि आप एंड में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, लेकिन देखिए क्या इसका आंसर क्या आता है, रिवीजन लेस देन डी, रिवीजन इज सी, सो सी कम्स बिफोर डी, दिस इज ट्रू। लेस देन इक्वल टू, यस इट्स लेस देन, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका फॉल्स आ गया, यहाँ फॉल्स आ जाएगा। इसको देखने की रीजन ये है कि दिस कुड बी एन एरर। अगर रिवीजन कोई नंबर होता तो आप डी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये फॉल्स होता तो फिर ये गलत हो जाता। ठीक है, अब तो ये बूलियन है तो इट्स फाइन, इस पे डिपेंड करता है, ये आपका एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, एरर का चांस होने की वजह से आपने इसको भी थोड़ा सा देखना है। डी पार्ट सिंपल एल्गोरिथम्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, कंप्लीट द टेबल टू शो स्टेटमेंट बिलोंग्स टू व्हाट, टू सी स्टेटमेंट्स, ये आपने बताना है इनपुट है, प्रोसेस है या आउटपुट है। सम चार्स, इट्स अ वेरिएबल, हेलो वर्ल्ड, it's a string. ठीक है, it's not a string variable, it's a string value. String value is being stored in a string variable. Values को जो assign हो रही है, is it input statement, process और output? It seems to be process. ठीक है, अभी आपने इस पे टिक नहीं करना। रूल ये है, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपने टिक करना होता है, उनको आप पहले सबको पढ़ लें, जिसका आपको बिल्कुल श्योर हो उसको टिक कर लें, बाकी को एंड पे करें, हो सकता है वो कहीं और आए। आउटपुट राइट, ये तो सीधा सीधा आउटपुट लिखा हुआ है, राइट, और ये राइट का फंक्शन अप्लाई हुआ है, राइट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, समझा, इसके 5 कैरेक्टर्स राइट साइड से क्या होंगे, वर्ड, ये वाला, तो वर्ड आउटपुट हो जाएगा, दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। रीड फाइल, माय चार्स, रीड फाइल कर रहे हैं दो वेरिएबल्स और फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल होगी, तो रीड का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, दिस इज एन इनपुट स्टेटमेंट। राइट फाइल, दिस इज आउटपुट, माय फाइल डेटा इज दिस, ये आउटपुट में आ जाएगा, दो आउटपुट आ गए, एक इनपुट आ गया।
नाउ कम बैक टू आइटम नंबर 1. अब ये क्या है, ये प्रोसेस है. एक तो रीजन ये है कि ये असाइन हो रही है वैल्यूज की. प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, या तो कुछ कैलकुलेशन हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, या आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं. ये भी प्रोसेस पे आएगी. ठीक है, आपको याद होगा जब फ्लो चार्ट में आप इसको शो करते हैं, कोई वैल्यू किसी को असाइन करते हैं तो आप प्रोसेस का बॉक्स चूज करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो इसमें आएगी. दूसरी रीजन ये है कि इनपुट और आउटपुट तो ऑलरेडी चूज हो चुके हैं, अब यही बचता है ना प्रोसेस, तो प्रोसेस इसमें आएगा. ठीक है, लेकिन हमने इसकी बेस पे नहीं इसको करना, आपने देखना है एक्चुअली ये क्या है. लेट्स कम टू पार्ट सी. Write in pseudocode a post condition loop to output all odd numbers between 100 and 200. Let's see. Post condition loop is what? In which condition comes at the end. And contrarily, there is precondition loop, which is while and while. You must know while and while is a precondition loop, and repeat until is post condition loop. Okay, so we are going to use and we are supposed to use post condition. And what should be output in this loop? The odd numbers between 100 and 200. अब ये नहीं लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव है कि नहीं. It means they are not included. ठीक है, वरना इंक्लूसिव लिखा होता है. वैसे भी ऑड नंबर में खैर ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन इंक्लूसिव नहीं लिखा हुआ तो नेसेसरली इसके दरमियान में नंबर्स होंगे. Both these numbers will not be included. It carries 4 marks. इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है. तो let's write the pseudocode. We have to initialize variables, and this is confirmed that we have to use repeat until, right? Give some space. Always give some space in the beginning, at the end, and in between also, so that you can come up with any other command that is required. Repeat until. This is post condition. The condition comes with until. What should be the condition in this case? ये लूप कहाँ पे रुकेगा? जब ये 200 तक ऑड नंबर्स जनरेट कर देगा. ठीक है, ऑड नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे. वी शुड स्टार्ट द ऑड नंबर्स विद 100. 100 से ऊपर हमें जाना है. ऑड नंबर के लिए आप एक वेरिएबल यूज करें. ऑड इज a variable that I'm going to use for this. Right now, how will we start outputting the numbers, the odd numbers after 100? What's the odd number right after 100? This is 101. Okay. So we'll add 1. Either we start with 99, because you know we'll add 2 every time to an odd number to get the next odd number. अगर एक 19 है तो उसमें 2 ऐड करेंगे 101, फिर 2 ऐड करेंगे 103, फिर ऐड करेंगे 105 and so on. We'll go up to 199. So let's do that. First of all, should we increment the number by 2 or should we output the odd number? हमने 99 लिखा है, अब 101 से स्टार्ट करना है. पहले इसमें ऐड करेंगे. Odd is odd plus 2, right? And you may change your mind, like this. This very problem can be solved by using any other method as well. ठीक है, कि सिर्फ ये नहीं है, आप कुछ और यूज कर सकते हैं. But anyway, that we try to make the shortest pseudocode. Odd is odd plus 1. We have to output all those numbers. So output statement is to be written inside the loop, right? Output odd. हम यही भी इसको output कर सकते हैं. कहाँ तक चलेगा? Until odd is equal to 200 तक चलेगा. This is my perception so far. Let's see if it works correctly or not. हम इसको change भी कर सकते हैं. We have to output odd numbers between 100 and 200 using post condition. Okay, right? Now let's dry run it. आपको इसका पता लगेगा pseudocode आपका ठीक चल रहा है कि इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं. ड्राई रन का मतलब ये है कि हम इसमें एक और नंबर तो कर लेते हैं. और नंबर है हमारे पास. तो जल्दी से इसको टेम्परेरी बबरी से प्रोसेस कर लें. Odd is 99, so it is 99. अभी आउटपुट नहीं होगा. Repeat odd plus 2. 99 plus 2, it becomes
becomes 101. So output odd. Odd की current value है 101 क्योंकि variable always remembers its most recent value. तो 101 आपका आगे output हो गया. Until odd. Is 101 equal to 200? Is this true or false? 101 equal to 100 false. False पे चलेगा. It will go back to repeat statement. Right? ये true पे रुकता है और false पे चलता है. It's opposite to while and while. वो true पे चलता है, ये false पे चलता है. ठीक है? तो वापस आएंगे repeat पे. 101 plus 2 103. Output 103. तो 103 का output कर देगा. 103 भी 200 के लिए चलता रहेगा. जब आप 199 आप 199 प्रिंट करेंगे, लाइक 197 प्लस 2 199 आपका प्रिंट हो गया. 199 इज इक्वल टू 100. नो, वापस आएगा रिपीट पे. 199 प्लस 2 201. 201 को भी आउटपुट करेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. वी आर गोइंग आउट ऑफ रेंज. अब 201 इज इक्वल टू 200. नो, स्टिल फॉल्स. फिर चलेगा, वापस आएगा. तो 201 प्लस 2 203. 203 को भी कर देगा, इसको भी आउटपुट कर देगा. ये हमें नहीं करना. हमने तो देखिए रिक्वायरमेंट है 200 के अंदर, तो वो 199 शुड बी द लास्ट नंबर. ये हमारा आउटपुट होना चाहिए. ये दो इसलिए है कि 200 को स्किप कर गया. ठीक है, हम इस क्यों स्किप किए? क्योंकि 200 इज एन इवन नंबर. दिस शुड हैव बीन एन ओल्ड नंबर. और नंबर कोई भी, लाइक 201 कर लें. Right. Now let's see if it skips the statement or not. Let's see. हमने 199 जब प्रिंट कर लिया, तो 199 is not equal to 200. वापस किया और 199 प्लस 2 201. 201 को भी उसने आउटपुट कर दिया. अब फिर उसने आउटपुट कर दिया, तो उसको नहीं करना चाहिए. अब 201 इज इक्वल टू 201 ट्रू हो गया. अब ये वापस नहीं जाएगा, लूप विल टर्मिनेट. ठीक है, लेकिन हमें इससे एक स्टेप पहले रोकना है, तो हम इसको 199 पे रोक लेते हैं. राइट, अब ये नहीं, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया. तो आप थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, आपको समझ आ जाती है. ये सिर्फ आपका 5 लाइन्स का कोड है. ठीक है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड वन, वेरी वेरी सिंपल. बस सिर्फ आपने लॉजिक इसका देखना है क्या करना है. You know how to use the variables, you know how to use the loop, and how to increment by 2, etc etc. इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने ना की. Let's try to understand this. This is structure chart, right? Structure chart has a main module connected to sub modules. इसको सब रूटीन या सब मॉड्यूल्स कहते हैं. इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यही है कि आप अपने मेन प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं सब प्रोग्राम्स में. These sub programs are either functions or procedures, right? And we are not sure these two are functions or procedures, or any one of them is function or which one is procedure. So structure chart is actually used as we use flowcharts. This is a combination of flowchart and structure diagram. इसका जो नाम structure chart है, तो actually structure लिया हुआ है structure diagram से और chart लिया हुआ है flowchart से. Combined features है इसके पास. Roberta downloads music from an online music store. The diagram shows part of structure chart for the online music store. ठीक है, checkout यहाँ पे हो रहा है. It depends on these two stages. State 3 items of information. The diagram shows about the design of the program. इसमें क्या चीजें आ रही हैं? 3 चीजें आपने बतानी है. देखिए, ये दो functions या procedures हैं. Main program is calling this function or procedure, and it's sending these two values as parameters. Okay? ये parameters हैं जो यहाँ पे आते हैं, and this is returning the value. ये value return कर रहे हैं. वो सब प्रोग्राम जो value return करता है उसको हम function कहते हैं. Right? As you know, procedure cannot return any value. Function can return a single value. Right? So this is a function. अब हम ये बताएंगे, अब वो क्या रहा है इसमें. ये कार्ड पेमेंट इज अ फंक्शन एंड अकाउंट पेमेंट इज व्हाट. यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो इसमें भी प्रोसीजर और फंक्शन. अब आपने
three items of what the diagram shows about design of the program. One is it's using parameters. ये दो parameters इसमें आ रहे हैं, right? They are giving values to this function, and a boolean value is being returned to the main program. मेन मॉड्यूल को ये boolean value कैसे है? ये देखिए, इनके आप सर्कल्स देखिए, ये hollow है, ये filled circle है, filled circle boolean value है, ठीक है। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसकी डेटा टाइप होती है, सी वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, उसकी टाइप है बूलियन। ये दोनों डेटा आइटम्स, ठीक है। हम इनकी वैल्यू नहीं देंगे कौन सी है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ये कौन सी है, ठीक है। ये हो गए। और क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब रूटीन। अब ये भी एक इसका फीचर लिख देंगे, द मेन प्रोग्राम या मेन मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू सब मॉड्यूल्स that are either function or procedure. Their names are card payment and account payment. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दें। Examples of data items that correspond to the arrows are given in the table. अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, A B C। C आपको बताया था बूलियन है, तो इसलिए उसने ट्रू की वैल्यू दी है उसको, ठीक है। बूलियन में भी ट्रू और फॉल्स ओनली। B is a string and A is either a decimal or real, ठीक है, क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल भी हो सकता है और रियल भी, रियल में भी डेसिमल आ सकता है। यूज सूडोकोड टू राइट फंक्शन हेडर फॉर कार्ड पेमेंट मॉड्यूल। इसका आपने हेडर लिखना है कार्ड पेमेंट मॉड्यूल, क्योंकि अब आपको डेटा टाइप्स पता लग गई। अब वो चाह रहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये फंक्शन है या प्रोसीजर है, कौन सा है, ठीक है। हेडर आपने लिखना है, वैसे उसने फंक्शन लिखे, बट उसको फंक्शन आपने डिस्क्राइब करना है कैसे। मैं इसको यहाँ पे लिखा, अगर आपने फंक्शन बनाना है सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इज कार्ड पेमेंट, there shouldn't be any space in function name. This is function, this is functions identifier, the name of function. Then in brackets you write the parameters. There are two parameters, A and B. A is real and B is string. A is real, comma, B is string. That's it. And what does it return? Function always returns a value, and this value has data type boolean. आप यहाँ पे लिखिए returns boolean, ठीक है। This is function header. Only header was required, and this is the function footer, which is not required in this case, ठीक है। इसको आपको लिखने की जरूरत, ये आपको सिर्फ required है। रिटर्न्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं या आप एज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आपको मार्किंग स्कीम में रिटर्न्स नजर आए, इसको आपने रिटर्न नहीं लिखना, रिटर्न्स लिखना है, क्योंकि पूरा कीवर्ड रिटर्न्स है। रिटर्न एक और कमांड है जो फंक्शन के अंदर यूज होती है। आपको पता है फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जैसे ये देखिए सी को रिटर्न कर रहा है, तो जब आपने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करनी होगी तो आपको जरूरत नहीं है इस पर्सन, तो आप लिखेंगे रिटर्न सी, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रिटर्न्स लिखेंगे, तो आपको सिर्फ ये बड़ा रिक्वायर्ड। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये स्ट्रक्चर चार्ट में से हो गया। पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर आपने पढ़ा हुआ है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, दीज आर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स, यू नो, और इनको एडीटी भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इनका सूडोकोड दिया हुआ है। स्टैक, यू नो, स्टैक हैज क्वाइट डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम क्यू एंड लिंक लिस्ट। Stack is created using high-level language. The program diagram represents the current state of stack. Stack इस वक्त है, इसमें एक ही पॉइंटर होता है टॉप ऑफ स्टैक, वो इस वक्त है यहाँ पे ई पे, ठीक है। ये एड्रेसेस है 99 और सारा यहाँ पे। अब आपने नेक्स्ट आइटम अगर इंसर्ट करना है तो यू विल टेक इट हियर एंड यू विल एंटर द वैल्यू। अभी तक ये एंटर हुआ ना, A was the first value that was entered, but this will be processed at the end. You know the principle at which a stack works. This is called first in last out और last in first out, ठीक है। ये प्रोसीजर इनका प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले जो इसमें स्टैक में आया वो सबसे आखिर में प्रोसेस होगा। फर्स्ट इन, A was first in and this will be last out। सबसे बाद में प्रोसेस ही होगा, पहले E होगा, फिर D, C और E, हालांकि ये सबसे बाद में है। अब अगर नियर डेटा इंसर्ट होना है तो टॉप ऑफ स्टैक विल गो वन स्टेप अप, पहले 101 पे था तो 100 पे चला जाए, ठीक है, यानी -1। इसका जो एड्रेस है वो -1, एड्रेस को पॉइंटर भी कहते हैं।
Two operations associated with stack are push and pop. Push means insert new data, जो यहाँ पे insert होगा. Pop means deleting the previous data. और delete सिर्फ यही हो सकता है जो top of stack के सामने है. यहाँ से कुछ delete नहीं हो सकता. इसको delete करना है तो top of stack will go one step down. वो D भी आ जाएगा और E will be kept unfocused. So this will be logically deleted. जब नया डेटा आएगा तो ये फिजिकली डिलीट हो जाएगा. ठीक है. तो अगर डिलीट होना है टॉप ऑफ स्टैक नीचे आएगा यानी पॉप के लिए, और अगर पुश करना है तो टॉप ऑफ स्टैक विल गो वन स्टेप अप. उसको चेंज कर लेंगे. देखिए ऊपर जाएगा तो 101 से 100 पे आ जाएगा, -1. नीचे आएगा तो +1 क्योंकि 101 से 102 पे आ जाएगा. ठीक है. डिस्क्राइब दीज ऑपरेशंस विद रेफरेंस टू द डायग्राम. इनको आपने डिस्क्राइब करना जो मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्टली ऐसे. ठीक है. बी पार्ट चलिए ये कर लेते हैं. बाकी आपका सूडो कोड है तो इसको आप जरा देखें. यू हैव ऑलरेडी रन प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, उन्हीं को कॉल करें. Two programs use a stack to exchange data. A program adds string pushes a string of characters onto stack, one character at a time. Push और pop एक वक्त में एक ही होता है. ठीक है. इसमें so they use stack to exchange data. First of all, we need to push a string of characters onto stack, one character time. Program remove string pops the same number of characters of the stack, one character at a time. Right? पहले आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो एक प्रोग्राम है जो पुश करता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स स्टैक के ऊपर एक कैरेक्टर, और दूसरा जो आपका प्रोग्राम है या सब प्रोग्राम है वो आपके वो सारे नंबर वो सारे वैल्यूज रिमूव करता है स्टैक से. The string taken off the stack is different from the string put on the stack. Explain why strings are different. They are different because stack it follows first in first out principle. ठीक है. First in first out या last in first out. First in last out और last in first out ये दोनों यूज करते हैं. ओके. क्यों यूज करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? तो इसलिए आपको एक से आप रिमूव करके उसी में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू रिमूव द वैल्यूज वन आफ्टर द अदर. इसका आंसर इसी के अंदर है कि वन कैरेक्टर एट अ टाइम. अगर आप सारे इकट्ठे कर सकते तो एक ही में कर सकते, एक से रिमूव करके उसमें नए इंसर्ट कर देते, या इंसर्ट करके उनको इकट्ठा रिमूव कर देते. आप एक एक करके करते हैं बिकॉज देयर इज वन पॉइंटर, सो यू विल रिमूव और पुश वन डेटा एट अ टाइम. राइट. ओके. नाउ फॉर टुडे. ओके. सी यू देन. अल्लाह हाफिज़.